Assalamualaikum everyone. Welcome back to the second part of our high yield diabetes series. In the previous lecture, Cracking Diabetes, we covered the core concepts frequently tested in FCPS and IMM exams, including common single best answers and Viva based questions. Today's lecture is extremely important, especially for house officers and trainee medical officers working in gynae and obstetric wards. In this session, we will focus on diabetes in relation to insulin therapy, some important targets of diabetes, and contraception. These topics are very commonly asked in exams, repeatedly appear in Viva, and are daily ward problems. So our special emphasis is on what examiners expect you to say in Viva and how to score marks in written papers. And by the end of this lecture, my aim is that you should be able to confidently answer those examiners' questions and also manage diabetic patients practically and safely in gynae and obstetric settings. So let's start this interesting and high-yield lecture confidently. So I'm going to start the lecture with some important facts about insulin, and we are going to crack those facts exactly the way examiner expects from you. So first of all, the important one is types of insulin and peak time, and this is very an important table. So as you can see that we have got different types of insulin. Important ones are rapid acting insulin, short acting insulin, intermediate, long acting, and ultra long. So first of all, rapid acting insulin. The examples are Lispro and Aspart. The onset for rapid acting insulin is 10 to 15 minutes. So what does we mean about onset? Onset is the length of time before insulin reaches the bloodstream and begins lowering blood glucose levels. So what about the peak? The peak for rapid acting insulin is 1 to 2 hours. By peak time, we mean that this is the time during which insulin is at maximum strength in terms of lowering blood glucose level. And the duration is 3 to 5 hours. Duration is how long insulin continues to lower blood glucose level. So this is important facts about rapid acting insulin, and the Viva tip is that it is given just before meals. So next is short acting insulin. This is one of the famous insulin type we commonly use in our wards, and it comes with the name of regular insulin or Humulin R. The onset for this is 30 to 60 minutes, peak is 2 to 4 hours, duration is 6 to 8 hours. And the most important interesting fact about short acting insulin is that it is the only insulin used IV. Okay, so please remember this. This is very high yield exam question. Next type is intermediate, and in intermediate, the common and famous example is of NPH. Onset is 1 to 2 hours, peak is 4 to 12 hours, duration is 12 to 18 hours. An important tip for this is that it causes nocturnal hypoglycemia. We previously learned in the part 1 about Somogoy and dawn phenomena. So NPH is sometimes included in those phenomena. So the next one is long acting. The examples are Glargine and Ditimer. The onset is 1 to 2 hours, and there is no peak for the long acting insulin, and duration is 24 hours. So this is a type of basal insulin. Ultra long acting insulin is not commonly used in our setting, so we cannot think about that how we are going to use that. So the important for you people are the rapid, short, intermediate, and long acting. So one line Viva question for you should be that regular insulin is the only insulin that can be given intravenously. So please remember this fact. Next, we are having look at the pictures of the vials of insulin. The first, second, and the third vial is showing you the rapid acting insulin, and the fourth one and the fifth one is long acting insulin. One important thing I want to clear that regular insulin, the vial of regular insulin is usually clear. The solution is clear,
and for the NPH, while the solution is little bit cloudy. So sometimes this question also asks from you in the exam that have you seen a regular insulin vial? So you can say that yes, I have seen the regular insulin vial and the solution is clear. And for NPH, you can be asked what is the color of the solution in the vial. You can say that it is little bit cloudy. And another important fact that we should never mix the Lantus insulin, the long-acting insulin, with the other type of insulin. That is, long-acting insulin should be left alone. ठीक है? So the thing is that हमारे पास different types की insulin mixture भी available होते हैं. The most important, जिसको हम 70-30 कहते हैं या mixed start कहते हैं, what is the combination of that? It is combination of regular plus NPH. So आपने एक clear solution को cloudy solution के साथ mix किया है, but you are not going to mix the regular or NPH with the long-acting insulin. For long-acting insulin, we have to left them alone. Okay, so this was little important. I thought that I have to discuss this with you on this slide. Next important thing is insulin requirement in pregnancy. So we are going to crack that trimester wise. So first of all, the formula for calculating the total daily dose of insulin is very simple. इसमें कोई बड़ा formula नहीं है. Just you have to remember the weight. आपने patient का weight measure करना है in kg. Then you have to multiply that weight with units per kg per day. ठीक है? तो आपके पास total insulin की जो प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट हो जाती है, टोटल डेली डोज, वो कैलकुलेट हो जाएगी. सो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो यूनिट है ये किस तरह मल्टीप्लाई होंगे. सो फॉर दैट वी हैव अ सिंपल फार्मूला दैट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजली हमने रफली 0.7 से 0.8 यूनिट्स पर केजी पर डे रिक्वायरमेंट इंसुलिन की रखी हुई है. सो इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर द इंसुलिन रिक्वायरमेंट इज 0.8 to 1.0, यानी सिंपल आप 1 भी कह सकते हैं, 1 यूनिट पर केजी पर डे. एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर 0.9 to 1.2. अगर आप सिंपल इसको इजी फॉर्म में याद रखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर को हम 0.8 ले लेते हैं, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर को हम मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट पर केजी पर डे भी कर सकते हैं. ठीक है ना? ये सिंपल आपको फॉर्मूला बता रही हूँ जो यूजली हम अपनी रूटीन प्रैक्टिस में ड्यूरिंग ओवर ट्रेनिंग पीरियड वी वर यूज टू डू थिंग, ताकि आपके पास थोड़ा सिंपल हो जाए. सो एग्जाम्पल आप देख लेते हैं दैट, ताकि हमारे पास थोड़ी सी अगर कन्फ्यूजन है दैट गॉट लिटिल बिट ईजी. अगर हमारे पास रफली एक पेशेंट का वेट है 70 kg, तो पेशेंट अगर आपके पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ट्राइमेस्टर की डोज हमने देख ली 0.8 से 1.0 यूनिट पर केजी पर डे है. ठीक है? अगर यहाँ पर हम लेते हैं 0.9 या सिंपल आप इसको अगर 1 भी कंसिडर कर लें, ठीक है ना, कि हमारे पास पेशेंट का हम 1 लेते हैं, तो आप 70 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपके पास पेशेंट की टोटल डोज ऑफ इंसुलिन 70 यूनिट्स पर डे आ जाएगी. ठीक है? तो इस टोटल डोज ऑफ इंसुलिन को फिर आप डिवाइड करते हैं कि आपने इसको 50% बोलस देना है और साथ में 50% आपने बेजल देना है. ठीक है? तो ये फार्मूला आप याद रख लें कि टोटल डोज ऑफ इंसुलिन जो डेली हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ फार्मूला वेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स पर केजी पर डे. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप यूजली 0.8 तक ले लें, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप यूजली 1 यूनिट पर केजी पर डे याद रख सकते हैं. ठीक है? तो जब आपके पास कैलकुलेशन आ जाती है कि हमारे पास टोटल डेली डोज इस पेशेंट को जो हमारे पास एडमिट होगी वार्ड में या हमारे पास ओपीडी में आती है, उसको हमने टोटल डेली डोज कैलकुलेट करके दे दी है कि 70 यूनिट्स पर डे आपने लेने हैं. अब वो कहेगी भाई मैं किस तरह लूँगी, तो आपने उसको एक रिजीम बना के देनी है. ठीक है ना? कि भाई इस पेशेंट का जो 70 यूनिट्स आया है या 60 यूनिट आया है या 50, वट एवर द टोटल डोज इज, इसका 50% बेटर है कि आप बेजल दे दें. बेजल में आपके पास NPH आता है या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आता है, और बोलस फॉर्म में जो आपके पास इंसुलिन आती है वो आप यूज़ करते हो, यूजली आप शॉर्ट एक्टिंग यूज़ करते हो या फिर आप रैपिड एक्टिंग बिफोर मील्स भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना? लेकिन यूजली हमारे वार्ड्स में हम ज़्यादातर शॉर्ट एक्टिंग जो रेगुलर इंसुलिन है
वो यूज़ करते हैं। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल दोबारा देख लेते हैं। अगर हमारे पास किसी पेशेंट का टोटल डोज जो कैलकुलेट हुआ था वो 60 यूनिट्स है, अभी हमने इसका 50-50 करना है, तो इसका 50 जो आ जाएगा वो हमारे पास 30 बन जाता है। ठीक है, तो 30 यूनिट्स जो है वो आप इसके बेजल के दे देंगे इस पेशेंट को NPH या लॉन्ग एक्टिंग की फॉर्म में दे देंगे। ठीक है, और जो रिमेनिंग 30 है उसको आप शॉर्ट एक्टिंग की फॉर्म में देंगे और उसको आप डिवाइड करेंगे 3 पोर्शंस में, क्योंकि पेशेंट यूजुअली दिन में 3 दफ़ा खाना खाती है, तो आप इसको 10 करके 30 पूरा डोज पूरा करेंगे और 10 यूनिट्स बिफोर ईच मील ये पेशेंट रेगुलर या शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लिया करेगी। ठीक है, तो इस तरह जो टोटल डोज होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या सिंपल आप एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम विद द हेल्प ऑफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट हम यूनिट्स कैलकुलेट करके पेशेंट की रिजीम सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि आप किस तरह देंगे, तो आपको ये चीज़ भी बेसलाइन में इंफॉर्मेशन या नॉलेज के तौर पे होनी चाहिए। ठीक है ना। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है अबाउट द इंसुलिन सिरिंज। अब देखें, अगर हम जो फैक्ट्स की बात करें, यूजुअली हमारा होता है कि हम तो अपने पेपर्स पर चार्ट्स पर लिख देते हैं कि भाई ठीक है इतनी इंसुलिन पेशेंट को मिलेगी, एंड द थिंग्स देन कम ओवर द शोल्डर्स ऑफ आवर स्टाफ। ठीक है, तो बात तो सही है कि सारा काम स्टाफ करती है, बट वी शुड नो अबाउट द इंसुलिन सिरिंज, इंसुलिन टाइप्स एंड इंसुलिन डोजेज कैलकुलेशन। तो एग्ज़ाम में अगर एग्जामिनर ये देखना चाहे कि आपने कभी किसी डायबिटिक पेशेंट का काम किया है या नहीं, एग्जामिनर कैन आस्क फ्रॉम यू दैट हैव यू सीन इंसुलिन सिरिंज। सो इफ़ यू वुड से दैट येस आई हैव सीन इंसुलिन सिरिंज, ऑब्वियसली हमने देखी हुई है, तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई अब आप उसकी यूनिट्स बताएं, वो कितने ml की सिरिंज होती है, उसमें कितनी मार्किंग्स होती हैं। सो द थिंग्स शुड बी ईजी फॉर यू इफ़ यू आर लर्निंग दिस द वे आई एम टेलिंग यू। अब स्टैंडर्ड इंसुलिन सिरिंज होती है उसकी कैपेसिटी होती है 1 ml। ठीक है, याद रखें 1 ml। कंसंट्रेशन जो उसमें होती है वो 100 यूनिट्स की होती है। ठीक है ना, तो इंसुलिन सिरिंज जो होती है उसको हम 100 इंसुलिन सिरिंज भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी। थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट करें दैट कैलिब्रेशंस जो उस पर लिखी होती हैं। ठीक है ना, ये 1 ml की पूरी हमारे पास एक सिरिंज है, उसके ऊपर जो छोटी छोटी मार्किंग्स होती है ना वो टोटल 100 यूनिट्स की होती है। ईच स्मॉल मार्किंग इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ईच बिग मार्किंग इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, आपके पास जो वाइवा 1 लाइनर है दैट इज U100 इंसुलिन सिरिंज मीन्स 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन इन 1 ml। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पिक्चर। देखिए, ये आपके पास एक पिक्चर आ गई है, हमारे पास ये इंसुलिन सिरिंज 1 ml की है, इसमें हमारे पास ये जो यूनिट्स बने हुए हैं ये टोटल 100 यूनिट्स हैं। अभी हमने पढ़ा कि ये जो स्मॉल मार्किंग्स हैं, ये छोटी छोटी मार्किंग्स जो हैं, ठीक है, जो अक्सर हमने स्केल और वो देखते हैं ना अपना मैथ्स का काम करते हुए, उसमें भी ये छोटे छोटे जो स्केल्स होते हैं उसको यहाँ पर इन मार्किंग्स को आप 2 यूनिट समझ लें, और जो बड़ा लार्ज मार्क है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा है बीच में ये 10 का है। ठीक है, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हो बेसलाइन, अगर कोई एग्जामिनर पूछे और आप आराम से सामने इंसुलिन सिरिंज पड़ी होगी, आप पकड़ के बता दें ये 1 ml है, इसमें ये सारे यूनिट्स टोटल 100 यूनिट्स हैं। स्मॉल मार्किंग जो है वो 2 यूनिट्स बताती है, लार्ज मार्किंग जो है यहाँ से यहाँ तक वो 10 की है। तो द थिंग्स आर ईजी फॉर यू, और एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो सकता है कि भाई हाँ इस स्टूडेंट ने, इस TMO ने, इस हाउस ऑफिसर ने एग्जाम में वार्ड में काम किया था पेशेंट के साथ। ठीक है, so the ultra short viva summary, because you have to say this confidently in the viva on the bedside in front of your supervisor and consultant that insulin is safe in pregnancy, it does not crosses the placenta, requirement increases trimester wise from 0.7 to 1.2 units per kg per day, regular insulin is the only IV insulin, and U100 syringe has 100 units per ml. ठीक है, so the things are then fine and you can say this confidently.
So next, the important thing is that important targeted levels to be remembered. This is very exam favorite question. SBA में भी आ सकता है, EMQs में भी आ सकता है, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्रैक करेंगे so that things get easy. सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री प्रेगनेंसी ग्लाइसेमिक टारगेट्स. अब अगर पेशेंट आपके पास, अब हम प्री प्रेगनेंसी क्यों कह रहे हैं, बिकॉज द पेशेंट वुड बी ऑब्वियसली टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटिक होगी, ठीक है ना. तो ऐसी पेशेंट अगर आपके पास प्री प्रेगनेंसी में आती है, अगर आपने मेरा प्री प्रेगनेंसी वाला लेक्चर पढ़ा है, सुना है, तो उसमें भी मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर टाइप 1 डायबिटिक है, आपके पास आती है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए, तो आपने उसका अगर प्लाज्मा ग्लूकोज टारगेट उस पेशेंट को आपने बताने हैं, तो वो टारगेट्स होंगे कि फास्टिंग पर पेशेंट का टारगेट प्लाज्मा ग्लूकोज 5 to 7 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए. ये मॉर्निंग सेफ जोन है, ठीक है. तो मॉर्निंग का सेफ जोन क्या है, 5 to 7 मिलीमोल पर लीटर. और बिफोर मील रेस्ट ऑफ द डे, देखिए मैंने उसमें भी कहा था कि बिफोर मील वर्ड पर आपने एम्फेसाइज करना है कि खाने से पहले वाला. फास्टिंग तो 5 to 7 है, हर खाने से पहले, किसी भी मील से पहले पेशेंट का प्लाज्मा ग्लूकोज टारगेट क्या होना चाहिए, 4 to 7 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है. तो प्री मील लोअर एक्सेप्टेबल आपके पास जो रेंज आ जाती है वो 4 to 7 है. सो ये भी इजी है लर्न करना, 5 to 7, 4 to 7, ठीक है. नेक्स्ट, अगर आपसे इन टर्म ऑफ HbA1c टारगेट्स पूछें कि HbA1c टारगेट्स क्या होते हैं बिफोर प्रेगनेंसी, सो यू कैन से कि लेस देन 48, दैट इज 6.5% आपके पास टारगेट लेवल होना चाहिए if this is achievable without hypoglycemia. So this is the safe and ideal target of HbA1c level, which is less than 48 or less than 6.5%. So important thing is that any reduction toward the target level reduces the congenital malformation risk. और अच्छी बात यह है that every drop in the HbA1c level helps the baby, क्योंकि ये बेबी के लिए अच्छा होता है. This we are going to do for the baby, for the fetus. अब अगर आपके पास टारगेट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, दैट इज मोर देन 86 मिलीमोल पर मोल या 10%, सो यू हैव टू स्ट्रांगली एडवाइज दिस पेशेंट नॉट टू बेटर कंसीव, बिकॉज ये हाई रिस्क पेशेंट बन जाती है. यू हैव टू से दैट काइंडली डिले द प्रेगनेंसी टिल योर टारगेटेड लेवल्स आर अचीव्ड, ठीक है. सो वी हैव द एम फॉर नॉर्मल ग्लूकोज रेंजेस बिफोर कंसेप्शन, ठीक है. अच्छा, अब अगर आपसे पूछें कि प्रेगनेंसी में आपके पास प्लाज्मा ग्लूकोज टारगेट्स क्या होते हैं, तो वो भी हम इजी करके इसको याद करते हैं कि सबसे पहले अगर फास्टिंग की बात करें, ठीक है ना, द सनराइज, लुक एट द स्मॉल पिक्चर, ये सनराइज है. तो फास्टिंग पर आपके पास टारगेट लेवल होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 5.3 मिलीमोल पर लीटर. इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, 5-3 एट सनराइज, 5-3 एट सनराइज. अब अगर हम बात करें दैट 1 आवर आफ्टर मील्स क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 7.8 मिलीमोल पर लीटर. सो यू कैन रिमेंबर इट एज 1 आवर 7-8. तो 1 आवर क्या होना चाहिए, 7-8, ठीक है. नाउ द 2 आवर आफ्टर मील्स शुड बी लेस देन 6.4 मिलीमोल पर लीटर. इसको अगर आप कैसे एग्जाम में रिकॉल करेंगे, 2 आवर 6.4, ठीक है. तो इसको थोड़ा सा अपने लिए एक लिरिक्स टाइप बना लें, 5-3 at sunrise, 1 hour is 7-8, 2 hour is 6-4. इस तरह अगर आप रिपीटेडली इसको पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है. सो द मिनिमम सेफ लेवल ऑन इंसुलिन शुड बी मोर देन 4 और इक्वल टू 4 मिलीमोल पर लीटर. अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि लेवल कहाँ पे कितना आपके पास होना चाहिए, दैट शुड नेवर ड्रॉप बिफोर बिलो दैट इज 4. that the target level should never drop below 4, ठीक है ना. so it should be never below 4. so अभी हमने प्री प्रेगनेंसी की टारगेट लेवल पढ़े, अभी हमने प्रेगनेंसी में टारगेट लेवल पढ़ लिए कि हमारे पास क्या टारगेट लेवल होने चाहिए. एंड द नेक्स्ट कम ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल ड्यूरिंग लेबर एंड बर्थ, ठीक है. सो अगर आपसे मॉनिटरिंग का कहा जाए तो आपने मॉनिटरिंग लेबर और बर्थ के दौरान कैपिलरी ग्लूकोज को मॉनिटर करना है एवरी 1 आवर ड्यूरिंग लेबर एंड बर्थ, ठीक है. तो एवरी आवर यानी आवरली मॉनिटरिंग करनी है आपने कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल की. अब टारगेट रेंज अगर हम लेबर की और बर्थ में बात कर लें कि टारगेट रेंज क्या होते हैं, सो द टारगेट रेंज शुड बी मेंटेन बिटवीन 4 to 7 मिलीमोल पर लीटर.
तो ये आपके पास 4 to 7 होता है, ठीक है ना. यू हैव टू मेंटेन द टारगेट बिटवीन 4 to 7 मिलीमोल पर लीटर. सो व्हाट अबाउट द टाइप 1 डायबिटीज़. अगर आपके पास पेशेंट टाइप 1 डायबिटिक है तो जैसे ही आपके पास पेशेंट इस्टेब्लिश लेबर में चली जाती है, मीन आपके पेशेंट की जो पर वजाइनल फाइंडिंग्स है दैट इज़ वो 4 सेंटीमीटर से अबव हो जाती है, इस्टेब्लिश लेबर में होगी है. सो इन टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट यू हैव टू कंसिडर द स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन. दैट इज़ यू हैव टू कंसिडर IV डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन इन्फ्यूजन फॉर्म, ठीक है. तो ये तो हमने टाइप 1 डायबिटीज़ की बात की, लेकिन अगर इसके अलावा कोई सा भी आपके पास डायबिटीज़ की टाइप है, चाहे वो GDM है, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो अगर आपके पास उसका टारगेट रेंज बिटवीन 4 to 7 मिलीमोल नहीं आ रहा, यू आर नॉट सक्सेसफुल इन अचीविंग द टारगेट रेंज between 4 to 7 millimole per liter, then you can use IV dextrose plus insulin infusion. That is, then you can use the sliding scale during labor and birth. ठीक है. अभी हम स्लाइडिंग स्केल की भी डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए प्रैक्टिकली भी और एग्जाम वाइज भी. सो फर्स्ट यहाँ पर इस स्लाइड को कवर करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टूवर्ड द स्लाइडिंग स्केल. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आप MRCG की तैयारी करें उसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपका बन जाता है, ठीक है. सो द टाइमिंग एंड मोड ऑफ बर्थ इन डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, this I have taken from the NICE guideline and this is your exam and viva question. So for type 1 or type 2 diabetes, remember if there are no complication in term of mother, in term of fetal, we have got no complication, so the recommended time of birth for this patient would be 37 to 38 plus 6 weeks. ये आपका पेट एग्जाम क्वेश्चन है कि टाइप 1 पेशेंट है या टाइप 2 पेशेंट है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो रिकमेंडेड टाइम ऑफ बर्थ रेंज क्या होगी. आप इस पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं डिलीवरी, चाहे वो इन टर्म ऑफ इंड्यूस लेबर हो या सिजेरियन सेक्शन हो, इफ इंडिकेटेड दैट द टाइम वुड बी बिटवीन 37 to 38 plus 6. ठीक है, तो ये याद रखें. यानी टाइप 1 या टाइप 2 पेशेंट, टाइप 2 डायबिटीज वाली पेशेंट ने 39 वीक से पहले हर सूरत डिलीवर हो जाना है, ठीक है. अगर हम बात करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, बट दिस पेशेंट इज हैविंग सम मैटरनल, फीटल और सम मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस. तो कोई सा भी डायबिटिक की टाइप हो लेकिन उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो आपने ऐसी पेशेंट को 37 से पहले डिलीवर करना सेफ होता है, ठीक है. सो इफ कॉम्प्लिकेशंस आर प्रेजेंट वी हैव टू कंसिडर अर्ली डिलीवरी. और डिलीवरी का मोड ऑफ बर्थ इंडिविजुअलाइज होता है, दैट इज आप इंड्यूस कर सकते हैं लेबर और सिजेरियन सेक्शन भी एडवाइज कर सकते हैं इफ इंडिकेटेड, ठीक है. तो ये हमने बात की टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज की, ठीक है. अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जेस्टेशनल डायबिटीज, GDM. अगर GDM सिंपल है, अगेन पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो द रिकमेंडेड टाइमिंग ऑफ बर्थ इज 40 plus 6. पेशेंट आराम से 40 plus 6 तक जा सकती है, अपनी नॉर्मल लेबर का भी वेट कर सकती है. लेकिन अगर पेशेंट डिलीवर नहीं होती टिल 40 plus 6 वीक्स तक, देन यू कैन ऑफर हर इंडक्शन ऑफ लेबर और सिजेरियन सेक्शन इफ इंडिकेटेड, ठीक है. तो ये बात थी सिंपल डायबिटिक पेशेंट की GDM वाली. तो अगर पेशेंट इज हैविंग GDM बट नाउ शी इज अनफॉर्चुनेटली हैविंग कॉम्प्लिकेशंस, चाहे वो मैटरनल हो चाहे फीटल कॉम्प्लिकेशन, तो इस पेशेंट को आपने फिर डिलीवर करना होता है बिफोर 40 plus 6, ठीक है. देखिए GDM के लिए अगर आप याद करें तो बहुत ईजी है. GDM चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो चाहे अनकॉम्प्लिकेटेड, लेवल क्या है कि आपने 40 plus 6 उसका लेवल रख देना है. अगर विदाउट कॉम्प्लिकेशन है तो 40 plus 6 तक उसको जाने दें अपने लेबर में, अगर नहीं जाती तो ऑफर करें उसको इंडक्शन ऑफ लेबर या सिजेरियन सेक्शन एज इंडिकेटेड. और अगर पेशेंट GDM है लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो बेटर इट इज टू डिलीवर हर बिफोर 40 plus 6, ठीक है. तो यानी आप 40 पे डिलीवर कर सकते हैं, 39 पे कर सकते हैं, 40 वीक्स प्लस 1 डे पर, 40 वीक प्लस 2 डेज पर कर सकते हैं, because she is now having complication and we have to consider early delivery and the mode of birth should be individualized. So I hope कि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इजी हो गया होगा कि कोई सा भी टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ हो, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 39 से पहले इस पेशेंट को डिलीवर करना है. अगर टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ है और कॉम्प्लिकेशंस हैं तो 37 से पहले इस पेशेंट को डिलीवर
कर लें. इट्स बेटर टू कंसिडर अर्ली डिलीवरी. और GDM के लिए मैंने कहा विद कॉम्प्लिकेशंस बिफोर 40+6, विदाउट कॉम्प्लिकेशन टिल 40+6 तक आप पेशेंट को ले जा सकते हैं. सो प्लीज रिमेंबर दिस टेबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, चाहे आप FCPS की तैयारी कर रहे हैं या आप MRCG पार्ट 2 के लिए. ठीक है. सो दिस इज insulin sliding scale during labor and this was highly demanding topic from me कि इसको मैंने अच्छे से बताना है आपको. ठीक है. बिकॉज हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं स्लाइडिंग स्केल चल रहे होते हैं, लेकिन अक्सर पूछा जाता है कि भाई जो रिकमेंडेड है या जो गाइडलाइन में भी जिसका बताया गया है व्हाट इज़ दैट. सो दैट इज़ द IV डेक्सट्रोज इंसुलिन इन्फ्यूजन, जिसको हम सिंपली इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल भी कहते हैं. And the aim for this insulin sliding scale is that the aim is we have to maintain the capillary plasma glucose between 4 to 7 millimole per liter. अभी हमने पढ़ा कि लेबर में आपका टारगेट लेवल 4 to 7 होना चाहिए. ठीक है. So the aim is also that why we are going to emphasize that 4 to 7 होना चाहिए, because we have to prevent the maternal ketoacidosis and neonatal hypoglycemia. ठीक है. सो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेन टू स्टार्ट द स्लाइडिंग स्केल, सो आपका आंसर होना चाहिए दैट वी हैव टू स्टार्ट द IV स्लाइडिंग स्केल इफ पेशेंट इज टाइप 1 डायबिटीज. सो टाइप 1 डायबिटीज में अभी हमने पढ़ा फ्रॉम एस्टैब्लिश लेबर वी हैव टू स्टार्ट द स्लाइडिंग स्केल. एनी फॉर्म ऑफ डायबिटीज, पेशेंट को कोई सी भी डायबिटीज हो, चाहे टाइप 1 है, चाहे टाइप 2 है, चाहे DDM है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग द टारगेट लेवल ड्यूरिंग लेबर बिटवीन 4 to 7. मीन अगर 7 से उसका लेवल क्रॉस कर गया है और हम उसको मेंटेन नहीं कर रहे टारगेट को, तो तब भी हमने पेशेंट को डालना है स्लाइडिंग स्केल पर. आपको कई दफ़ा हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं, सिनेरियो दिया होता है कि पेशेंट लेबर में है और उसका जो टारगेट लेवल है वो मेंटेन नहीं हो रहा. जब भी आप पेशेंट का शुगर चेक करते हैं तो वो आपके पास 7.2 7.3 इस तरह आ गया, तो अब आप इस पेशेंट का क्या करेंगे. तो आंसर होना चाहिए दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट IV डेक्सट्रोज एंड इंसुलिन इन्फ्यूजन फॉर दिस पेशेंट. ठीक है. इसके अलावा थर्ड जो इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज वुमेन इज NPO और वुमेन इज वोमिटिंग. तो ऐसे केस में भी आपने पेशेंट को स्टार्ट करना होता है स्लाइडिंग स्केल. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इलेक्टिव सेक्शन. अगर पेशेंट इलेक्टिव सेक्शन पर हो तो जैसे ही पेशेंट को आप अंडर कराते हैं, स्पाइनल देते हैं, GA देते हैं, तो उसमें भी आपने पेशेंट का स्लाइडिंग स्केल स्टार्ट करना होता है. ठीक है ना. और वो फिर कंटिन्यू रहता है टिल पेशेंट इज NPO ब्रेक जब आप कर रहे होते हैं पेशेंट को. ठीक है. तो NPO ब्रेक होने तक वो स्लाइडिंग स्केल सेक्शन के बाद कंटिन्यू रहता है. ठीक है. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप हाउ द स्लाइडिंग स्केल इज यूज्ड. सो सबसे पहले तो देखिए, अगर हम कंसिडर करें एक पेशेंट का, सॉरी फॉर द बैड डायग्राम, एक पेशेंट का आर्म है. ठीक है. आपने पेशेंट के आर्म पर कैनुला लगाना है, दूसरे आर्म पर भी कैनुला लगाना है. So the first step was that set up IV lines. ठीक है. एक कैनुला, दूसरा कैनुला. Use 2 IV lines. तो फर्स्ट लाइन जो हमने ली है उसमें हमने क्या यूज़ करना है, 10% डेक्सट्रोज. ठीक है ना. और 10% डेक्सट्रोज का आपने डायला फ्लो के ज़रिए जो लेवल है वो सेट करना है यूजली 80 to 100 ml पर. हम जब अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे हम यूजली डायला फ्लो को 80 ml पर आवर पर सेट कर लेते थे, लेकिन अगर आप रफ याद रखना चाहें तो 80 to 100 ml पर आवर के हिसाब से दे सकते हैं पेशेंट को. ठीक है. तो जो फर्स्ट हमारे पास IV लाइन थी उसमें हमने डेक्सट्रोज लगा दिया पेशेंट को, डायला फ्लो के ज़रिए हमने उसका लेवल सेट कर दिया है अप टू 100 ml पर आवर. ठीक है. तो ये आराम से चलता रहेगा. अब व्हाट अबाउट द नेक्स्ट IV लाइन. तो नेक्स्ट IV लाइन में आपने इंसुलिन इन्फ्यूजन चलानी है. ठीक है ना. डेक्सट्रोज एक साइड पे चल गई, इंसुलिन इन्फ्यूजन दूसरी साइड पे चलानी है. तो कैसे चलाएंगे, क्या डायरेक्ट पेशेंट को देना है आपने? नो, नेवर. ठीक है. इस वर्ड को याद रखें, नेवर गिव इंसुलिन विदाउट ग्लूकोज रनिंग. अब इंसुलिन इन्फ्यूजन प्रिपेयर कैसे करना है आपने, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. जो आपके पास आता है जब हम भी अपनी ट्रेनिंग में करते थे कि हम नॉर्मल सलाइन की ड्रिप लेते थे 500 ml वाली, उसमें हम ऐड करते थे 50 यूनिट्स ऑफ
ऑक्ट्रापेड इंसुलिन या रेगुलर इंसुलिन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि रेगुलर इंसुलिन आईवी यूज़ होती है, तो हम यूजली 500 ml नॉर्मल सलाइन की बॉटल में 50 यूनिट्स ऑफ रेगुलर इंसुलिन डालते थे, ठीक है। तो इस सोल्यूशन को हम मिक्स करते थे, तो इसको भी हमने डायलाफ्लो के ज़रिए देना होता था पेशेंट को, ठीक है। डायलाफ्लो में इसका हम सेट कैसे करते थे कि हम इसको 10 ml पर आवर के हिसाब से सेट कर लेते थे, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायलाफ्लो को मेजर करना है कि कितना आपने देना है। अब 10 ml में ये जो हमने 500 ml का सोल्यूशन लिया था नॉर्मल सलाइन का, इसमें 50 यूनिट्स हमने डाले हैं। तो अगर आप अपना मैथ्स, वैसे यूजली डॉक्टर का मैथ्स थोड़ा सा हल्का फुल्का होता है, कुछ बीच में तेज़ भी हो सकते हैं लेकिन अगर इफ़ यू कैन फाइंड आउट द टोटल फाइनल कंसंट्रेशन, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि हर 10 ml फ्लूइड में आपके पास 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन जा रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ इस बात को नोट करें कि 10 ml आपने डायलाफ्लो में उसको 10 ml के हिसाब से रख देना है, बिकॉज यू हैव गॉट इन योर माइंड कि इस 10 ml फ्लूइड के साथ पेशेंट को 1 यूनिट इंसुलिन आईवी जा रही है, ठीक है। तो अभी हम इसको खैर दोबारा भी रिपीट कर लेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। स्टार्ट में शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, बिकॉज आई हैव सीन इन डे टू डे क्लिनिकल सेटिंग के ये वाला स्लाइडिंग स्केल आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सलीट होता जा रहा है, ठीक है। बट द थिंग वॉज कि ये बहुत अच्छा होता था जब हम भी यूज़ करते थे। सो हमने 2 आईवी लाइंस पेशेंट को पास की, एक पे हमने डेक्सट्रोज 100 ml पर आवर के हिसाब से पेशेंट को लगाने शुरू कर दिया है विद द हेल्प ऑफ डायलाफ्लो, ठीक है, एंड द डेक्सट्रोज इज 10% डेक्सट्रोज, ठीक है। दूसरी जो हमने आईवी लाइन डाली है उसमें हमने इंसुलिन इन्फ्यूजन प्रिपेयर की है। हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड, 500 ml नॉर्मल सलाइन में हमने 50 यूनिट्स इंसुलिन डाले हैं, चाहे आप शॉर्ट एक्टिंग डालें चाहे आप रैपिड एक्टिंग डालें, लेकिन इस सोल्यूशन को डाल के आपने मिक्स करना है। फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगी कि एक 10 ml के फ्लूइड में 1 यूनिट इंसुलिन जा रही है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए आपने, अब ये वही बात है कि दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैथ्स। तो की कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, इसका भी हमने रेट आवर के हिसाब से रखा हुआ है। अगर पेशेंट को 10 ml फ्लूइड जा रहा है, इसका मतलब है इसमें 1 यूनिट है। अगर पेशेंट को 20 ml पर आवर के हिसाब से नॉर्मल सलाइन वाला फ्लूइड जा रहा है, तो इसका मतलब है इसमें 2 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से इंसुलिन जा रही है, ठीक है। तो ये इजी है याद करना, 10 है ना तो 10 के साथ 1 को याद रखें, 20 है 20 के साथ 2 को याद रखें, 30 ml पर आवर दे रहे हैं इसके साथ 3 को याद रखें, ठीक है, कि मतलब हम 3 यूनिट्स पर आवर दे रहे हैं। इसके अलावा सिंपल एक और फॉर्मूला भी है कि आप डायलाफ्लो को डिवाइड कर दें 10 पर, कि अगर आपने पेशेंट को कितने ml फ्लूइड दे रहे हैं, 10 ml दे रहे हैं ना आप डायलाफ्लो के थ्रू, तो उसको 10 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा। अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैथ्स, तो आंसर आपके पास 1 आता है। इस 1 का मतलब है 1 यूनिट पर आवर इंसुलिन जा रही है। अगर आप डायलाफ्लो को 20 ml पे करते हैं, उसको डिवाइड करें 10 पर, तो अगेन द आंसर वुड बी 2। तो मतलब क्या है कि आपके इस पेशेंट को इंसुलिन यूनिट्स कितने जा रहे हैं, 2 यूनिट्स पर आवर, ठीक है। तो इस फार्मूले को भी याद कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल जो जिस तरह मैं याद करती थी कि अगर 10 ml फ्लूइड हम दे रहे हैं तो उसमें 1 यूनिट है, 20 दे रहे हैं तो उसमें 2 यूनिट है, 30 दे रहे हैं तो उसमें 3 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से पेशेंट को इंसुलिन जा रही है, ठीक है। तो आई होप कि अब तक हमारे जो फर्स्ट स्टेप है और सेकंड स्टेप है वो आपको क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देन यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस थिंग प्रैक्टिकली एज अ स्लाइडिंग स्केल, वेदर द पेशेंट इज हैविंग सी सेक्शन या पेशेंट लेबर में है, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेप को अंडरस्टैंड करें, समझें, ताकि आप उसको क्लिनिकली अप्लाई कर सकें। So the next important step is sliding scale using dial-a-flow and the practical labor ward sliding scale अब क्या होगा, ठीक है। देखिए हमने अभी एक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी कि अगर आपका पेशेंट लेबर में है ना, पेशेंट का लेवल अगर लेस देन 4 है तो हमने इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल नहीं देनी पेशेंट को, ठीक है ना, क्योंकि हमारा टारगेट स्टार्ट ही 4 से हो रहा है कि 4 to 7, ठीक है। तो अगर आप पेशेंट को स्लाइडिंग स्केल दे रहे हैं, फर्स्ट ये हमारे सपोज ये हमारे पास टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है ना। तो टाइप 1 डायबिटिक का तो हमने कहा ना कि जब पेशेंट इस्टेब्लिश लेबर में होगी यू हैव टू स्टार्ट द स्लाइडिंग स्केल। तो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने किस तरह स्टार्ट करना है,
अगर उसका टारगेट 4 to 7 के बीच में है 10 ml से स्टार्ट करें। और इस 10 का क्या मतलब है कि इसमें 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से इंसुलिन जा रही है, ठीक है। और वो जो डेक्सट्रोज वाला IV लाइन है ना, वो उसी तरह चलेगा, उसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। वो 80 to 100 ml पर आवर के हिसाब से चल रहा है पेशेंट को, ठीक है। अगर आपके पास टारगेट लेवल 7 से 9 के बीच में आ गया है तो आपने इसको 20 ml पर आवर कर देना है। अब देखिए, आपने ये भी याद रखना है कि चेक ग्लूकोज आवरली। अब 10 ml पर आवर के हिसाब से जब आपने चलाई, 1 घंटे बाद आपने पेशेंट का ग्लूकोज चेक किया, बट अनफॉर्चुनेटली यू फाउंड दैट द ग्लूकोज लेवल इज मोर देन 7 बट लेस देन 9, तो आपने इस पेशेंट का डेक्सट्रोज के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। आपने जो इंसुलिन का आर्म था, इंसुलिन वाला कैनोला था, उस पे आपने डायलाफ्लो को 20 पे कर देना है। इस 20 का मतलब क्या है कि अब पेशेंट को 2 यूनिट्स पर आवर जा रहे हैं, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट, अगर आपने दोबारा आवरली पेशेंट को मॉनिटर किया और अगर उसका टारगेट लेवल जो है वो 9 से 12 के बीच में जा रहा है, तो आपने अगेन लेवल ज़्यादा कर देना है 30 ml पर आवर पर, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल मोर देन 12 है, तो यहाँ पर आपने ये भी नहीं करना कि बस आप जो लेवल है इंसुलिन की वो ज़्यादा किए जा रहे हैं। यू हैव टू इन्वॉल्व द कंसल्टेंट एज वेल। यूजली 9 to 12 पे भी आप अपने कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करें, और मोर देन 12 हो तो कंसल्टेंट के साथ साथ आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को या मेडिकल फिजिशियन की भी ओपिनियन ज़रूर लेते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू एडजस्ट द डायलाफ्लो आवरली बिकॉज यू आर गोइंग टू चेक ग्लूकोज आवरली, ठीक है। तो इस तरह करके आप अपना ये स्लाइडिंग स्केल ऑफ इंसुलिन अपने पेशेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं इन योर डे टू डे प्रैक्टिकल लेबर वार्ड में, ठीक है। सो आई होप कि ये द थिंग्स आर नॉट मच डिफिकल्ट फॉर यू। लेकिन द स्टेप 4 अब जो है, वी हैव टू रन द 10% डेक्सट्रोज बाय सेपरेट IV लाइन। टिपिकल रेट मैंने आपको बता दिया कि वो 80 to 10 ml पर आवर के हिसाब से हो सकता है। एंड अगेन इम्पॉर्टेंट दैट नेवर रन द इंसुलिन विदाउट ग्लूकोज, ठीक है। तो ये आपने इसको देना है। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन वी हैव टू कंटिन्यू द सेम स्लाइडिंग स्केल। इसमें हमने अवॉइड करना है बोलस इंसुलिन को। बोलस इंसुलिन जो पेशेंट अगर रेगुलर हर मील से पहले लेती है ना, तो ज़ाहिर है पेशेंट यहाँ पे NPO है, वो आपने नहीं देना होता। उस सेक्शन में भी आपका टारगेट हमेशा 4 to 7 ही रहता है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द आफ्टर डिलीवरी की ये स्लाइडिंग स्केल कब तक चलता रहेगा? तो यूजली स्लाइडिंग स्केल जब पेशेंट NPO ब्रेक करने लगती है, तो NPO ब्रेक होने से आधा घंटा पहले हम पेशेंट को उसका रेगुलर इंसुलिन की जो डोज होती है वो हम पेशेंट को दे देते हैं, ठीक है। और इस आधे घंटे के दौरान हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपना नाश्ता मंगवा ले, खाना पीना जो भी उसने करना होता है वो मस्ट अपने पास रख ले, ठीक है। क्योंकि अगर पेशेंट के पास खाना नहीं है तो आपने स्लाइडिंग स्केल को स्टॉप नहीं करना फिर, ठीक है ना। फिर आपने NPO ब्रेक नहीं करना जब तक कि वो अपना खाना, ब्रेकफास्ट है, लंच टाइम है, जो भी है, पेशेंट ने जो भी स्नैक्स लेने हैं वो उसके पास हो, ठीक है। तो जब आधा घंटा पहले हम पेशेंट को उसकी रेगुलर इंसुलिन की डोज देते हैं, और वो डोज क्या होती है, वी हैव टू रिवर्ट टू प्री प्रेगनेंसी डोज। अगर टाइप 1 डायबिटिक है तो आप उससे पेशेंट की पूछेंगे भाई प्रेगनेंसी से पहले कितनी डोज आप लेती थी इंसुलिन को, वो उतनी हम दे देंगे, ठीक है। तो उस आधा घंटे के बाद पेशेंट अपना नाश्ता कर लेगी, NPO ब्रेक हो जाएगा और स्लाइडिंग स्केल भी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कैनोलेस जो हमने पेशेंट को लगाए ना, उनसे भी पेशेंट की जान छूट जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब ये हम डोजेस क्यों कम करते हैं, बिकॉज आफ्टर डिलीवरी जो कल्प्रिट प्लेसेंटा है वो डिलीवर हो जाता है, तो इंसुलिन रिक्वायरमेंट फौरी ड्रॉप करती है, ठीक है। सो इन टाइप 1 वी हैव टू रिवर्ट टू द प्री प्रेगनेंसी डोज। इन GDM वी यूजली स्टॉप द इंसुलिन, ठीक है। तो हम पेशेंट की जस्ट ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं कि पेशेंट डाइट करे और हम उसकी मॉनिटरिंग करें। अगर हमें लगता है कि पेशेंट सिंपल डाइट और मॉनिटरिंग से भी कंट्रोल है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव हर इंसुलिन or any hypoglycemic drug. So I hope the things would be easy for you in terms of insulin sliding scale. Just have a quick revision that when to start type 1 diabetic from established labor, any diabetes if glucose is more than 7 millimole per liter, if patient is vomiting, if patient is not taking orally, or if patient is undergoing elective C-section, तो आपने स्टार्ट करना होता है स्लाइडिंग स्केल। टारगेट हमारे पास 4 to 7 होता है।
कैपिलरी ग्लूकोज हम आवरली चेक करते हैं और इसमें कॉन्टिन्यूस सीटीडी चलती है पेशेंट की, ठीक है। और डायला फ्लो का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेस देन 4 पे नहीं देना होता इंसुलिन को। 4 to 7 पे टाइप 1 डायबिटिक है, या जब भी आप स्लाइडिंग स्केल स्टार्ट करें 10 होना चाहिए, इसके बाद 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा और सीनियर रिव्यू होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। और सेफ्टी रूल फॉर द 10% ग्लूकोज की वो आपने सेपरेट IV लाइन से देना होता है। नेवर गिव इंसुलिन विदाउट ग्लूकोज एंड चेक कीटोन्स टाइप 1 डायबिटीज एज वेल, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइप 1 डायबिटिक में हम कीटोन्स भी चेक करते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है दैट वी हैव टू अवॉइड द इंसुलिन बोलस। इंसुलिन बोलस हम नहीं देते अनटिल एंड अनलेस हम पेशेंट का NPO ब्रेक करने लगे हैं, और उससे आधा घंटा पहले हम पेशेंट का स्विच ऑन करते हैं बोलस पर और फिर उसका NPO ब्रेक होता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँ कि कैपिलरी ग्लूकोज आप आवरली चेक कर रहे हैं, लेकिन स्लाइडिंग स्केल के साथ हम यूजली 4 आवरली सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी मेजर करते थे, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई इलेक्ट्रोलाइट्स का पूछे तो आपने 4 आवरली सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी पेशेंट के लेकर भेजने होते हैं जब तक आपका ये जो स्लाइडिंग स्केल है ये चल रहा है, ठीक है। आवरली ग्लूकोज, 4 आवरली सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और आवरली आपने डायला फ्लो को चेंज करना है। अगर पेशेंट की जो रेंज है वो मेंटेन है 4 to 7 तो उतना ही आप रखेंगे। अगर 10 पे मेंटेन है 10 पे रखें, 20 पर है तो 20 पे रखें, ठीक है। लेकिन अगर चेंजेस आ रही हैं, रेंज से बाहर है, तो आपने अकॉर्डिंगली चेंज करना है और अपने सीनियर की ओपिनियन लेनी है, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक हम जो डायबिटीज़ को कवर कर चुके हैं कि हमने प्री कंसेप्शन से स्टार्ट किया, एंटीनेटली स्टार्ट किया, फिर हमने पेशेंट को डिलीवर किया, चाहे वो नॉर्मल था चाहे वो सेक्शन के थ्रू था, स्लाइडिंग स्केल की बात की। अब हम बात करते हैं कि पेशेंट का डिलीवर हो जाती है तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, जिसमें एग्जामिनर इंटरेस्टेड होता है कि पेशेंट को आखिर तक फॉलो अप करना है और आपने पेशेंट को कंट्रासेप्शन का एडवाइस करनी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का रिगार्डिंग कंट्रासेप्शन। सो कंट्रासेप्शन हम पढ़ेंगे इन टर्म्स के हमारे पास हम 6 टाइप ऑफ कंट्रासेप्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले हम इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्शन की बात करेंगे। इन दैट इंक्लूड कॉपर बेयरिंग IUDs एंड द लीवोनॉर्गेस्ट्रल रिलीजिंग IUS, ठीक है ना, इंट्रायूट्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो यूट्रस के अंदर डलती हैं, ठीक है ना। रिमेंबर, यूट्रस के अंदर हम डाल रहे हैं, हमारे पास 2 चीज़ें, एक तो कॉपर वाली है और एक हमारे पास लीवोनॉर्गेस्ट्रल है, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम प्रोजेस्टेरोन्स। प्रोजेस्टेरोन्स हमारे पास कितने टाइप के होंगे? हमारे पास ओरल भी होता है, हमारे पास इम्प्लांट भी होता है और हमारे पास डंपा की फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। ये आ गया। एंड नेक्स्ट आखिर में हम COCPs की बात करेंगे, ठीक है ना, जो आपके पास कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ठीक है। तो जब मैं इस चीज़ को याद करती थी ड्यूरिंग माई एग्जाम, आई यूज टू लर्न इट इन द वे दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 6 मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। 6 मेथड्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो इन टर्म्स ऑफ एनी कंडीशन, अभी तो हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, आप कोई सा भी मेडिकल डिसऑर्डर ले लें, कोई सी भी कंडीशन ले लें, अगर आपने जो हम UK मैक कंट्रासेप्शन का फुल गाइडलाइन पढ़ते हैं तो उसमें हम ये जो है इन 6 कंट्रासेप्शन को लेके बात की जाती है, इन 6 कंट्रासेप्शन को लेके टेबल बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एक क्विक रिव्यू करें कि हमारे पास जो है UK मैक क्या है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, क्योंकि हम इन्हीं टर्म पे बात करेंगे। ये जो यहाँ पे 1, 2, 3 लिखे हुए ना, तो आपको पता होने चाहिए व्हाट डज दीज नंबर्स मीन। सो कैटेगरी 1 मीन दैट अ कंडीशन फॉर विच देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द यूज ऑफ मेथड। कैटेगरी 1 बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना, कोई सी भी कंडीशन है उसमें अगर कैटेगरी 1 है तो कैटेगरी 1 का मतलब दिस मेथड इज सेफ। Category 2 is a condition where the advantage of using the method generally outweighs the theoretical or proven-ness. Category 2 का मतलब ये है कि पेशेंट को contraceptive method से फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है as compared to the theoretical और proven risk, ठीक है, फ़ायदा ज़्यादा है, रिस्क कम है, तो इसलिए हम इसको दे सकते हैं पेशेंट को। बट कैटेगरी 3 का मतलब है रिस्क ज़्यादा है as compared to the एडवांटेज, ठीक है। तो ये 2 और 3 एक दूसरे के उलट आ जाते हैं। एंड द कैटेगरी 4 मीन दैट इट इज़ अ कंडीशन विच रिप्रेजेंट अनएक्सेप्टेबल हेल्थ रिस्क। तो ये मेथड हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते पेशेंट में, ठीक है।
तो ये मैंने आपको यूके मैक 1 2 3 4 का कैटेगरी बता दिया, व्हाट डज द नंबर्स मीन। अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्शन फॉर मेडिकल डिसऑर्डर डायबिटीज, ठीक है। तो अगर हमारे पास अब हम पढ़ते हैं डायबिटीज, अगर आपके पास पेशेंट हिस्ट्री देती है, हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज, तो जेस्टेशनल डायबिटीज की पेशेंट के लिए चाहे कॉपर आईयूडी हो, चाहे लीवोनॉर्गेस्ट्रल आईयूएस हो, दे आर कैटेगरी यूके मैक 1, मीन ये फ्रीली यूज कर सकती है पेशेंट, किसी टाइम भी यूज कर सकती है, ठीक है ना। सो जीडीएम वाली पेशेंट के लिए आईयूसी यानी इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्शन में दोनों टाइप्स हमारे पास बेस्ट हैं, चाहे वो कॉपर आईयूसीडी हो या चाहे वो लीवोनॉर्गेस्ट्रल हो, ठीक है। तो ये हमने जीडीएम को कवर किया है इन टर्म ऑफ यूट्रस वाली बात, ठीक है ना। ये यूट्रस को लेके जीडीएम कवर किया है कि यूट्रस के अंदर अगर कुछ डाला जा रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ नॉन वेस्कुलर डिजीज, ठीक है। तो नॉन वेस्कुलर डिजीज अगर डायबिटिक पेशेंट में है तो हम डिपेंड करता है पेशेंट इंसुलिन ले रही है या पेशेंट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, ठीक है। पेशेंट को लॉन्ग टर्म डायबिटीज है लेकिन अभी उसको कोई वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि पेशेंट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है तो उसमें कॉपर आईयूसीडी कैटेगरी यूके मैक 1 बन जाता है, लीवोनॉर्गेस्ट्रल 2 बन जाता है। इंसुलिन डिपेंडेंट है तो द सेम कॉपर आईयूडी इज यूके मैक 1, लीवोनॉर्गेस्ट्रल आईयूएस इज यूके मैक 2, ठीक है ना। मतलब इसमें एडवांटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिस्क, तो अगेन हम लीवोनॉर्गेस्ट्रल दे सकते हैं। अब हमारे पास थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस वाली बात आ जाती है। कॉम्प्लिकेशंस को हम डिवाइड करेंगे कि अगर पेशेंट को नेफ्रोपैथी है, रेटिनोपैथी है या न्यूरोपैथी है तो अगेन कॉपर आईयूडी 1 कैटेगरी पर है, लीवोनॉर्गेस्ट्रल 2nd पोजीशन पर है। और अगर अदर वेस्कुलर डिजीजेज हैं तो इसमें भी अगेन हमारे पास कॉपर आईयूडी 1 पोजीशन पर है एंड लीवोनॉर्गेस्ट्रल आईयूएस इज यूके मैक 2, ठीक है। तो इसको यूट्रस को याद रखें और यूट्रस को लेकर यूट्रस के अंदर क्या चीज़ रख सकते हैं, कॉपर आईयूसीडी या लीवोनॉर्गेस्ट्रल, और उसके लेकर हमने डायबिटीज़ को क्रैक किया हिस्ट्री ऑफ जीडीएम में, नॉन वेस्कुलर डिजीज़ में और कॉम्प्लिकेशन वाली डिजीज़ में, चाहे वो नेफ्रोपैथी थी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी या अदर वेस्कुलर डिजीज़ में, ठीक है। सो आई हैव रिटन हेयर दैट कॉपर इज कूल एंड एस्ट्रोजन इज एनिमी, ठीक है ना। तो copper IUCD and levonorgestrel IUS always 1, almost everywhere. So the mnemonic for that you can remember for your interest that uterus does not care about sugar. Uterus does not care about sugar. तो शुगर चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, शुगर चाहे कितनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, ठीक है। तो यूट्रस के अंदर अगर आप कोई कंट्रासेप्शन डालना चाहते हैं तो यूट्रस डज नॉट केयर अबाउट शुगर, ठीक है। तो कॉपर आईयूडी और लीवोनॉर्गेस्ट्रल ऑलवेज 1 हो सकते हैं फॉर डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पी, ठीक है ना। यूट्रस की बात हमने कर ली है, अब हम बात करेंगे पी। प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड कितने कॉन्ट्रासेप्टिव हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं पिल्स की फॉर्म में, इंजेक्टेबल की फॉर्म में एंड इम्प्लांट की फॉर्म में, ठीक है। यानी ये इम्प्लांट है, ये डंपा आपके पास इंजेक्शन आ जाता है और ये ओरल है पिल्स की फॉर्म में, ठीक है। हम 3 टाइप्स की बात करेंगे। अगेन हमारे पास कैटेगरीज ऑफ डायबिटीज सेम वही है, जीडीएम है, नॉन वेस्कुलर है और कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज है, ठीक है। तो जीडीएम को लेके यू कैन सी यू आर हैप्पी दैट अगेन जीडीएम स्टैंड्स हियर विद द अवार्ड ऑफ 1st पोजीशन, ठीक है। तो जीडीएम के लिए प्रोजेस्टेरोन की भी पोजीशन कौन सी है, 1st, ठीक है। चाहे आप इम्प्लांट दें, डंपा दें, ओरल दें, जीडीएम में सारे प्रोजेस्टेरोन यूके मैक 1 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन वेस्कुलर डिजीज की। नॉन वेस्कुलर डिजीज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट, ये भी देखें कितना इजी है। इसमें आपके पास चाहे तीनों ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन की, उनकी पोजीशन क्या है, 2, ठीक है ना। इम्प्लांट, डंपा, पीओपी स्टैंड्स एट यूके मैक 2 कैटेगरी, ठीक है। मतलब एडवांटेज ज़्यादा है, रिस्क कम है, आप दे सकते हैं, आप पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। अगेन अब कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए, चाहे नेफ्रोपैथी हो, रेटिनोपैथी हो, न्यूरोपैथी हो या अदर वेस्कुलर डिजीज हो, यहाँ पर भी आप डायबिटिक के लिए पीओपी, डंपा, इम्प्लांट की पोजीशन क्या है,
2, यूकेमैक 2 कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो अगर पीओपीज की बात की जाए, आपके पास जीडीएम को लेकर फर्स्ट पोजीशन है। बाकी अगर आपके पास नॉन वेस्कुलर डिजीज़ है या वेस्कुलर डिजीज़ है तो पीओपी है, डंपा है या इम्प्लांट है, उनकी यूकेमैक सेकेंड कैटेगरी है। तो ये प्रोजेस्टेरोन को लेकर भी आप याद कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल ईजी है, ठीक है। तो इस तरह भी आप याद करेंगे तो द थिंग्स वुड बी इंटरेस्टिंग एज वेल एज ईजी फॉर यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव की। कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल, आप ओरल भी पेशेंट को दे सकते हैं, ट्रांसडर्मल पैच की सूरत में भी दे सकते हैं और वजाइनल रिंग की फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। EDR stands for transdermal patch, TDP transdermal patch and VR stands for vaginal ring. अगेन हमने इन डायबिटीज़ को उसी कैटेगरी में ब्रेक किया है। अगर GDM की बात होगी तो अगेन इट हैज़ गॉट द अवार्ड ऑफ यूकेमैक 1, ठीक है ना। देखिए थिंग्स आर देन इंटरेस्टिंग फॉर यू कि हमने डायबिटीज़ को लेकर 6 टाइप ऑफ कंट्रासेप्शन डिस्कस की। कॉपर IUCD, लीवोनॉर्गेस्टिल, POP, डंपा, इम्प्लांट एंड COCPs, 6 कंट्रासेप्शन है। और GDM को लेकर everyone has got यूकेमैक 1, ठीक है ना। तो GDM तो यहाँ पे बिल्कुल इजी पीजी हो गया आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गॉट द सेकंड कैटेगरी ऑफ नॉन वेस्कुलर डिजीज। नॉन वेस्कुलर डिजीज का आप देखिए तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में COCPs हैज गॉट यूकेमैक 2, यूकेमैक 2 है, ठीक है। और अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें यहाँ पे आपके पास देखिए, इसको अगर मैं थर्ड कैटेगरी में डिवाइड करूँ, चाहे नेफ्रोपैथी हो, रेटिनोपैथी हो, न्यूरोपैथी हो या वेस्कुलर डिजीज, तो COCPs थोड़ा सा इसका रिस्क ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडवांटेज, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा ईस्ट्रोजन इज एनीमी, ठीक है। तो कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में ईस्ट्रोजन होता है। तो अगर पेशेंट को कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ में पेशेंट है तो डायबिटीज़ इस तरह की पेशेंट में COCPs हमने थोड़ा सा सोच समझ के देना है, ठीक है ना। वी हैव टू बी अवेयर कि भाई हम रिस्क पेशेंट को ज़्यादा देना चाह रहे हैं या एडवांटेज, ठीक है। तो एडवांटेज तो कम होगा, रिस्क ज़्यादा होगा, तो वो यूकेमैक 3 कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। सो COCPs को लेके आपने याद रखना है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है ना। GDM 1 है, नॉन वेस्कुलर डिजीज 2 है और कॉम्प्लिकेशन वाली कैटेगरी 3 बन जाती है, ठीक है। ओके, ये मैंने एक मास्टर निमोनिक आपके लिए लाया है फॉर यूकेमैक इन डायबिटीज़, ठीक है ना। मतलब सिंपल सा अगर आप इसको याद करना चाहें, दैट थिंक ऑफ द डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन एज क्लाइंबिंग अ लेडर, ठीक है ना। तो जैसे जैसे स्वेरिटी ज़्यादा होती है वैसे वैसे रिस्ट्रिक्शंस ऑफ यूकेमैक ट्रेंड भी ज़्यादा होता जाता है, ठीक है ना। तो G से रिलेटेड जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, एवरी यूकेमैक ट्रेंड इज सेफ। 6 की 6 कंट्रासेप्टिव ऑप्शंस आर सेफ फॉर GDM पेशेंट, ठीक है। अब अगर नॉन वेस्कुलर है तो नॉन वेस्कुलर का आपने देखा होगा, हमने पढ़ा है कि आपके पास जो है 1 भी है और इसके अलावा 2 भी आ जाता है, ठीक है ना। यूजली आपके पास 1 और 2 की कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है ना। तो आपके पास जो वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर के लिए है 1 और 2 कैटेगरीज 6 ऑप्शंस ऑफ कंट्रासेप्शन के लिए आती हैं, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट के लिए भी अगेन हमने पढ़ा है कि ज़्यादातर हमारे पास 1 और 2 वाली बनती है, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशन अगर आई किडनी नर्व की बात की जाए, वी वेस्कुलर डिजीज़ की बात की जाए, तो हमारे पास अपार्ट फ्रॉम COCPs बाकी सब जो है वो 2 कैटेगरीज में बनते हैं, लेकिन COCPs की बात की जाए तो वो 3 बन जाता है, ठीक है ना। तो हायर द स्टेप हायर द यूकेमैक नंबर, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके पास कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है यूकेमैक का नंबर भी स्पेशली COCPs को लेके ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो ये आपके पास में एक आखिर में जो समराइज़ है, क्योंकि मैंने आपके पास जो अभी प्रेजेंट की है वो मैंने बिट बाय बिट प्रेजेंट किया है टू ब्रेक द कन्फ्यूजन इनटू चंक्स, क्योंकि हमने क्रैक करना था डायबिटीज़ को। तो अब इसको एज अ होल अगर आप देखें, ये आपके पास गाइडलाइन में इस तरह है कि आपके पास यूट्रस के अंदर डालने वाली, प्रोजेस्टेरोन की और कंबाइंड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, तो सेम यही चीज़ें अभी हमने बिट बाय बिट हमने इसको पढ़ा है। सो द 1 लाइन एग्जाम क्वेश्चन आंसर टू impress the examiner would be that in diabetes, estrogen containing contraception becomes increasingly contraindicated
as vascular involvement increases, while intrauterine methods remain safe throughout. तो ये आपके पास एक 1 line वाइवा पैराग्राफ हो सकता है, and this is to impress the examiner, which I don't think so. कि खैर some examiners could get impressed. ठीक है, तो this was all about the important topics, facts regarding cracking the diabetes. So I hope you have enjoyed the lecture. Thanks for watching. If you have liked it, please do share it with your colleagues और subscribe भी करें मेरे channel को, and मुझे suggestions में बताएं. You have to give me suggestion that what other next topic should I bring in front of you, because we have to crack all the difficult topics. And stay tuned. Till then, Allah Hafiz.